Okay, good morning, students. We are going through our third chapter, synthetic fiber and plastic. हम अपना तीसरा चैप्टर कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक। और सिंथेटिक फाइबर्स में हमने बच्चों अब तक काफी कुछ पढ़ लिया है। Synthetic fiber to factory meaning fiber which has been developed and produced in the factory through organic substances by the chemical treatment. Okay? और उसको हमने स्टडी करने से पहले what is polymer, monomers, what is polymerization, then types of fibers, natural, synthetic, types of synthetic fibers, rayon, nylon, polyester, acrylic. It should not be N, it should be C. Okay? Acrylic. Then we have gone through the advantages of what? Synthetic fiber. ठीक है? उसकी strength, durability, यानी कि smoothness, so many things we have studied about 10 points. Then disadvantages, उसके नुकसान क्या है? सबसे बड़ा क्या है बच्चों उसका? It is so extreme, it is so fine. Cross ventilation of air is not there. During summer it is uncomfortable to wear the synthetic fibers, fabrics made of synthetic fiber and all this. And it, you can say melts on heating, gets fire and all that. It's not advisable to wear these polyester clothes when you are working in kitchen or where some fire can occur in science lab and all that, where some fire is can be there. Okay. Then we are going through the introduction of plastics. और हमने उसके अंदर क्या कर लिया था बच्चों? Polythene, PVC, polyvinyl chloride. Here also it should be C. Polyvinyl chloride, bakelite, melamine, Teflon. These two are जो सॉफ्ट हो जाते हैं, बैकलाइट हार्ड वन, मेलामाइन आल्सो फायर प्रूफ, आपके फायर फाइटर्स के जो कपड़े बनते हैं उसके अंदर भी मेलामाइन कोटिंग होती है। देन वी हैव टच दिस टेफ्लॉन आल्सो। टेफ्लॉन दैट मींस इट इज ऑयल एंड नॉट ग्रीस रेजिस्टेंट. Oil cannot stick, water cannot stick over it. So it is used in the non-stickware utensils and all that. जो non-stickware का आपको फ्राई पैन मिलता है, तवा मिलता है. All these we have studied so far. Now coming to the types of plastic. There are two types of plastic: thermoplastic and thermosetting plastic. The major difference is, जैसे हमने इसमें कहा था, that polythene and polyvinyl chloride, these are the synthetic fibers which melt on heating. They catch fire, they melt on heating. Like this, these plastics, when they're manufactured or when they're made, articles or the objects made from these things are made, उस वक्त क्या है बच्चों? It gets softened and it melts. So thermoplastic, it's softened, it can be softened repeatedly. कहने का मतलब क्या है? Any object made of thermoplastic melts or gets softens on heating. It can be again and again heated, it can be again melted, it can be again given a new shape, new desired shape. This is also known as recycling. कहने का मतलब क्या? ऐसा प्लास्टिक which can be melted, remolded again and again on heating is known as thermoplastic. ठीक है? Can be molded again and again, repeatedly. कहने का मतलब क्या है? कोई प्लास्टिक की चीज बनी हुई है, उसे अगर हम हीट करते हैं, अगर वो मेल्ट होके सॉफ्ट हो जाती है और उसे हम रीमोल्ड कर सकते हैं, दैट इज थर्मोप्लास्टिक. ओके? तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये जो पॉलीथीन एंड पीवीसी है, फर्स्ट टू कैटेगरी जो हमने कल स्टडी की थी, पॉलीथीन एंड पीवीसी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ
थर्मोप्लास्टिक। कहने का मतलब ये वाला प्लास्टिक जो है इट इज अगेन, कहने को तो है कि इट इज हीट रेजिस्टेंस, इट इज यू कैन से बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज नॉट दैट मच हीट रेजिस्टेंट। यानी इससे वो चीजें वी मेक दोज प्लास्टिक आर्टिकल्स which do not get heated so much. Insulators, they are used as mainly as insulators. आपका कॉम, प्लास्टिक बकेट, उसमें आपने क्या करना है? इवन एट द टाइम ऑफ विंटर, what you will do? Lukewarm water you will use. You will not excessive hot water and all that. So these type of plastics are used in those objects, those articles where they are not exposed to, you can say, उनका एक्सपोजर ज्यादा हीट के साथ नहीं होता है। ओके, थर्मोसेटिंग, these are those type of plastic which melt on heating once, that's all। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब वो उससे कुछ आप ऑब्जेक्ट या आर्टिकल बनाने जा रहे हो, कोई चीज बनाने जा रहे हो, when you heat that, once it will get softened, it will melt, when it is given that particular any particular shape, इससे आप कोई चीज बना लेते हो, इसे कोई शेप दे देते हो, once set, एक बार ये सेट हो गया, it gets hardened, then on heating, दोबारा आप इसे गर्म करते हो, it will not soften, ये ढीला नहीं पड़ेगा, it will not melt, you cannot remold, you cannot recycle it, इसे आप दोबारा से इसकी कोई चीज नहीं बना सकते, इसे आप रिसाइकिल भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वन सेट डज नॉट बिकम सॉफ्ट, दैट्स ऑल। एक बार आपने उसके कोई चीज बना लिया, आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के वो स्विचेस हैं, सॉकेट्स हैं, ऑल दीज थिंग्स दे आर मेड अप ऑफ। आपका कुकर का हैंडल है, बैकलाइट का होता है, इवन प्रेस के ऊपर जो लगा होता है वो भी किसका होता है? बैकलाइट का होता है। Why? Because they are heat resistant and they are electricity resistant also. So they are safer. आपने देखा होगा बच्चों, कई बार क्या होता है in the winter season when we are using, you can say that your heaters to keep the room warm and all that, दादाजी हैं घर में, ठंड लगती है उनको, सर्दी लगती है, क्या होता है बच्चों? Continuously using that heater and all that, क्या होता है? When you are drawing more electricity from a particular point, it gets heated up. और आपने देखा होगा बच्चों, सॉकेट वो जो है वहां से बर्न हो जाता है, ब्लैकन हो जाता है, कभी सॉफ्ट नहीं होता, कभी मेल्ट नहीं होता। और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों? दो दे आर हीट रेजिस्टेंट, दे आर इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंट, दैट मीन्स दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बड़ा इसका नुकसान ये भी है बच्चों, आपने कई बार देखा होगा, समटाइम व्हेन यू आर यूजिंग सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड ऑल दैट, वो प्रेस यूज कर रहे हैं, आपसे कहीं हल्का सा वो उसे उतारते हुए करते वो प्लग नीचे गिर जाता है, इट ब्रेक्स इनटू टू, इट इज ऑफ नो यूज। कहने का मतलब टूट जाएगा, बेंड नहीं होता। तो मेजर डिफरेंस क्या हुआ बच्चों इसमें? अगर हम हाथ में लगा के देखते हैं ना बच्चों, तो बाय हाथ लगाने से भी आप टेस्ट कर सकते हो विच इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड विच इज थर्मोप्लास्टिक। आपकी पेट बोटल्स है बच्चों, पेट पॉलीथीन वाले कैटेगरी में आता है, वो ईस्टर ग्रुप में आता है, वो पॉलिस्टर वाले ग्रुप में आता है। तो वो क्या है बच्चों? वो थर्मोप्लास्टिक है। और बाकी जो हार्ड वाले हैं, और इस करने का मतलब क्या है? अगर आपने टेस्ट करना है इसको, वही लिखा होगा मैंने टेस्टिंग के लिए कुछ, यस, टेस्ट हीटिंग। अब अगर पेट की बोतल में या आपके जो कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर आप थोड़ा सा भी गर्म पानी डाल दो, आप देखते हो बच्चों, दे डिफॉर्म, उनकी शेप बदल जाती है, बेंड हो जाते हैं। और वैसे भी आप देखो तो इफ यू टच देम, वो सॉफ्ट होते हैं। पीवीसी आपने देखा होगा, अपने घर के अंदर प्लम्बर को फिटिंग करते हुए कई बार क्या होता है बच्चों, सॉकेट नहीं है उसके पास, वो पाइप को गर्म करके दूसरी पाइप को एक दूसरे में फंसा के उसका वो साइज बढ़ा लेता है। दैट मीन्स वो क्या है,
दे गेट सॉफ्टर इजिली। तो वो क्या हो गए, यानी कहने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन इसके अंदर मेन यही है, थर्मोप्लास्टिक दे गेट soften on heating, they can be used again and again, recycled, they can be given the desired shape, but thermosetting plastic, once given a particular shape, they will break up, nothing else. You cannot use it again and again. They do not get softened on heating again. और अब क्या बच्चों, why such difference is there in thermosetting and thermosetting plastic, thermosetting plastic and thermoplastic? उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, there is a difference. अब आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आपकी दो फिंगर्स हैं, they can slide pass over each other, and if they are like this, interlocked, crisscrossed, crossing is there, if you pull this or that, it is not so easy to pull them. Likewise, in the polymers of what? This is a internal, you can say, structure of a thermoplastic, and this is the internal structure of a thermosetting plastic. आपने देखा इसके अंदर क्या है, केवल सीधी एक को लाइक दिस, सीधी क्या है, पॉलीमर्स है, जिसके अंदर मोनोमर्स कॉन्टिन्यूसली वो जुड़े हुए हैं। और आप लोगों भी देखिए कैसे क्या है, आपका माला है, आपकी बीड्स, बीच में एक लिंक, धागा टूटा, सब मोती बिखर जाते हैं। सेम वे व्हेन यू हीट these two, they can slide over each other, but here there is a cross links, there is a cross linkage between the what polymers of setting plastic. Thermoplastic, there is no cross links, but in case of thermosetting plastic, there is cross links. There are cross links. So that is why when you heat them, these polymers they can slide over each other or heating, they softens, they get loosened one and all that, वो लूज हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, and this is not the case in the thermosetting plastic. That is why I have written test heating cannot be recycled. That means cannot be. Thermoplastic can be recycled, thermosetting plastic cannot be recycled. और इससे फिर वो क्या बनेंगे, कौन कौन से आर्टिकल अपने आप कैसे बनेंगे, आपके थर्मोप्लास्टिक मेनली इंसुलेटर्स, या ऐसे उसके प्लास्टिक बकेट मग दिस एंड दैट, जिनके अंदर ज्यादा हीट, हम दे आर नॉट एक्सपोज टू मच हीट। यहां द आर्टिकल्स विच आर एक्सपोज टू मोर हीट कैन बी मेड ऑफ, or they are made from the thermosetting plastic. Now we come to the what? Useful properties of the plastic. Useful property of the plastic के अंदर क्या है बच्चों? Yes, first and the foremost is chemically unreactive, resistant to corrosion. आपने देखा होगा बच्चों, आपके कोई जैसे पहले आप क्या था, प्लास्टिक बकेट मग आजकल यूज करते हैं हम अपने टॉयलेट बाथरूम में, पहले क्या था बच्चों? They were made up of what? Galvanized iron. इसको क्या बोलते, जिस्ती चद्दर, बाल्टी बकेट्स वो चीजें बनती थी, और नहाने के लिए इंस्टेड ऑफ हैविंग योर प्लास्टिक मग लोटा यूज करते थे। लोटा छोटे बड़े साइज के लोटे मिलते थे, ओके, मेनली मेड फ्रॉम कॉपर एंड ऑल दैट, ओके। तो क्या होता था बच्चों, दीज buckets and mugs and all that, they were exposed to what? Water and air and corrosion. उन्हें रस्ट, जंग लगती थी, corrosion होता था। इवन आपने देखा होगा बच्चों, आयरन इज बिट मोर रिएक्टिव, वो रिएक्टिविटी सीरीज हमने 7th में पढ़ी थी। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, स्टिल इट गेट्स, आपने देखा होगा दिवाली के दिन क्या करते हैं, जितने भी अपने शो पीसेस होते हैं कॉपर वॉपर के, उनको ला के हम लेमन के साथ या वो सैंड के साथ उनको पॉलिश करते हैं, फिर दोबारा से उनको चमकाते हैं।
कहने का मतलब क्या है, आपके ये जो these things made from the other materials like metals and all that, they got corroded or the corrosion was there, रस लगती थी उनको, कॉपर को भी लगती थी, इवन एल्यूमिनियम भी क्या है बच्चों, इसको भी रस्टिंग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, इसको भी रस लगती है। बट ये जो आपके प्लास्टिक वेयर्स हैं, ये जो आपका प्लास्टिक है, इट इज ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव केमिकली टू सम एसिड एंड बेसिस एंड टू एयर एंड वाटर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन दिस। कहने का मतलब क्या है, आपके जो प्लास्टिक है वो केमिकली थोड़ा अनरिएक्टिव, इसीलिए आपने देखा होगा बच्चों, these days in the kitchen all the items, majority of the items are stored in the PET containers, in the what PET containers, where it has gone here, I might have written PET somewhere, no, okay, you can call in with the previous lessons, previous lectures, okay, PET, polyethylene terephthalate, polyethylene terephthalate, chalo, anyhow, so this is the first property, poor conductor of heat and electricity, used as insulator। आपको वो मैंने पहले बताया, बैकलाइट है, आपका प्लास्टिक है, पीवीसी किस में यूज होता है, आपकी जो कॉपर वायर जो हम घर में वायर लाते हैं फिटिंग के लिए, उसके ऊपर एक इंसुलेशन होती है, रंग बिरंगी, नीली, हरी, लाल, पीली, तो उसके ऊपर जो इंसुलेशन है वो किसकी होती है, पीवीसी की। किसकी होती है, पीवीसी की। सो यूज्ड एज इंसुलेटर। और आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, स्विचेस, प्लग, सॉकेट, दिस एंड दैट, वो भी किसके बने होते हैं, बैकलाइट के। बैकलाइट, पीवीसी, ऑल दीज आर प्लास्टिक। और क्या है वो, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज आल्सो द व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। थर्ड, कैन बी मोल्डेड टू डिफरेंट शेप्स। यस, और सबसे बच्चों में ब्यूटी क्या है इसकी, दे कैन बी गिवन द डिजायर्ड शेप। डिजायर्ड शेप मतलब आपने देखा होगा पहले जो प्लास्टिक के इरा आने से पहले क्या था बच्चों घर में, अब आप तो उस इरा में, उस एज में पैदा हुए हो बच्चों, जब ये आपने देखा ही प्लास्टिक है, क्या होता था, एक पर्टिकुलर टाइप की एक शेप एंड साइज की बकेट बनती थी बाथरूम में यूज करने के लिए। नाउ आपके वो बैठने के लिए लकड़ी की चौकी होती थी। और आजकल बच्चों क्या है, आजकल क्या है, टॉयलेट्स बाथरूम के अंदर यू कैन डेकोरेट इट एज लाइक योर ड्राइंग रूम। सो मैनी दायरे में क्या है, उसके मोल्ड्स बनते हैं, सांचे बनते हैं, और अपनी लाइकिंग के अनुसार आप मार्केट के अंदर यू कैन परचेज डिफरेंट कलर्स। इफ यू लाइक पिंक कलर, you like green color, you like red color or a blue color. So anything. Desired shape, desired color, desired pattern also. Flowers वगैरह, Nysa, Flora, कभी कई क्वालिटीज आती है, Sallow, anything you can purchase. That means can be molded to different shapes. और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, वो होता क्या है बच्चों, इससे क्या है, they look attractive also. उसके बाद cheap and readily available. क्या है बच्चों, since they are being synthesized in the what factories from chemical substances or organic petrochemicals, they are quite cheap, सस्ते हुए और readily available. यानी क्या होने का मतलब क्या है, वंस एक बार आपने एक उसका मोल्ड बना लिया, एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज का आपने मग बनाना है, उसका मोल्ड, उसका सांचा बन गया, उसके बाद तो क्या है, वो ग्रेन उसके होते हैं, पीवीसी के ग्रेन्यूल्स होते हैं, दाने से होते हैं, एक पर्टिकुलर जगह से वो डालते हैं, साइड से हीटिंग अरेंजमेंट होता है. बस आई हैव सीन व्हेन आई वाज इन जॉब, आई हैव सीन फैक्ट्रीज वेयर दीज प्लास्टिक आइटम्स वर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. तो क्या है,
अदरवाइज क्या है, वो लोहे की एक बाल्टी बनाने के लिए शीट काट के वो हाथ से हैमर से उसकी रिपिट लगानी, ये करना, इट्स एनकम्बरसन, बहुत टाइम लगता था। बट इजिली, सस्ता भी है, अवेलेबिलिटी भी इजिली है। और उसके बाद बच्चों क्या है, लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। स्ट्रेंथ के बारे में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, नायलॉन का एक स्ट्रैंड एक पर्टिकुलर थिकनेस का, इट इज मोर स्ट्रोंगर देन द स्ट्रैंड ऑफ स्टील। एंड पॉलीथीन हमने क्या बच्चों, पॉलीथीन मतलब पोलिस्टर का डबल देन द नायलॉन, उसकी स्ट्रेंथ नायलॉन से भी ज्यादा है। कहने का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग, हल्के फुल्के हैं, वेट कम है। इसीलिए क्या बच्चों, आजकल आपने कभी अगर एरोप्लेन में सफर किया हो, ऊपर वो सामान रखने के लिए जगह बनी होती है, ठीक है, सब वो उसके कवर्स प्लास्टिक के। आपकी कार, आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार के अंदर भी डैशबोर्ड, इवन आपके बम्पर किसके बने होते हैं। इवन आपकी स्कूटी में भी आजकल क्या है, प्लास्टिक हैज एंटर्ड इनटू, प्लास्टिक हैज एंटर्ड इनटू। पहले क्या होता था, पुराने जमाने की एम्बेसडर गाड़ी, उसमें सब लोहा होता था और एवरेज क्या आती थी, 1 लीटर में कितने किलोमीटर, 8। धीरे धीरे फेज आउट हो गया, एम्बेसडर कोई नहीं लेता। आजकल क्या, अब हम गाड़ी लेने जाते हैं बच्चों, क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं, कितना देती है। कहने का मतलब हाउ मच माइलेज इट गिव्स। माइलेज कहां से आएगी, इंजन का तो फोर्स वही है, इंजन ने तो उतनी फोर्स जनरेट करनी है 1 लीटर डीजल या 1 लीटर पेट्रोल के अंदर। अगर वो भारी है तो कम दूरी तय करेगी, लाइट है तो ज्यादा। सो लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, दैट इज वाई ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी प्लास्टिक घुस गया है। नाउ कमिंग टू द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। यस, biodegradable are those substances which gets decomposed easily, with ease, by the action of microbes, particularly the bacteria. वो चीजें जो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाती हैं, गल सड़ जाती हैं, किसके द्वारा, इन द नेचर, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। जितने भी आपके बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आपकी लकड़ी है, आपकी कॉटन है, आपका पेपर है, ठीक है, आपके पील्स, सब्जियों के छिलके विलके, ये सब क्या हैं, दे आर ऑल बायोडिग्रेडेबल, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, those substances which do not get decomposed easily with the help of, by the action of what, bacteria, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। आपकी जितनी मेटल्स हैं, प्लास्टिक है, ग्लास है, these are all are, कहने का मतलब क्या है, जो मैन मेड सिंथेटिक, which have been synthesized, वो चीजें सभी की सभी किसमें आ जाती हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। किसमें आती हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और आपने अभी, मैंने आपको बोला, बाय द एक्शन ऑफ, आपने देखा होगा बच्चों, कई बार क्या होता है, खेतों में या किधर आपकी गाय भैंस या दूसरे एनिमल्स होते हैं, वो फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो काव अपने, वो वहां पे काव डंग अपने, उसने नेचुरल काव को यूज कर लिया। इन समर सीजन बच्चों क्या होता है, 1 या 2 दिन के अंदर आपने देखा बच्चों, 3rd डे 4th डे व्हेन यू विल सी, वो काव डंग का जो था वो क्या बन गया, सॉइल। कहने का मतलब उसके अंदर क्या था, ऑर्गेनिक मटेरियल था, विच हैज बीन डीकम्पोज्ड इनटू एंड सॉइल एंड अदर यूजफुल nitrogenous compound and all that by the action of bacteria and microbes. So biodegradable and non-biodegradable. Now we are coming to the interesting topic, plastic and environment. Plastic and environment. क्या बच्चों, प्लास्टिक, जैसे मैंने अभी आपको बताया, it is slowly it has replaced the other things. It has entered into our kitchen,
इट हैज एंटर्ड इन आवर ऑटोमोबाइल सेक्टर, यानी कि ये हमारी किचन में भी घुस गया है, हमारे टॉयलेट बाथरूम में भी घुस गया है, हमारे आजकल तो क्या है बच्चों, चाइनाज मेड आती थी, अभी अब तो बंद हो गई आनी कुछ पिछले कुछ दिनों से। इवन बने बनाए वो शीट्स आती हैं प्लास्टिक की, सुबह स्टार्ट होते हैं, शाम तक आपके वार्डरोब अलमीरा वगैरह कुछ बन के तैयार हो जाते हैं आपके। इवन ड्रोर्स आल्सो प्लास्टिक के बनने शुरू हो गए। कहने का मतलब क्या है, प्लास्टिक हर जगह घुस गया है। बट क्या है बच्चों, प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट, यस। अब मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूं, घर में आप सब भी लेके आते हो और भी काफी सारी चीजें लेके आते हो, किस में मिलती हैं आपको? पॉलीथीन कैरी बैग में, जिसको हम पन्नी बोलते हैं। आप क्या करते हो उसका, क्या करते हो? या तो वो डस्टबिन में जाती है, या क्या होता है, मम्मी सब्जियां छीलती है, उसके छिलके विलके डाल के उसको बंद करके डस्टबिन में फेंक देगी। अगर आप फर्स्ट सेकंड फ्लोर में छत पर ऊपर वाले घरों में रहते हो, ऊपर से नीचे सड़क के ऊपर, क्या होता है बच्चों? सिंस प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट विल रिमेन एज इट इज। और जैसे आपके द्वारा फेंका हुआ जो पॉलीथीन का बैग कंटेनिंग योर वेस्ट, क्या होता है बच्चों? इट चॉक्स योर ड्रेन्स, आपकी नालियों को, आपकी ड्रेन्स को, आपके सीवरेज सिस्टम को चौक करता है। आपने अक्सर देखा होगा, वी आर लिविंग इन फतेहाबाद। अगर आप जवाहर चौक की साइड में जाते हो, अब तो थोड़ा कम हो गया, अदरवाइज क्या होता था बच्चों, महीने में 20 डेज एटलीस्ट वो सारा गंदा पानी वहां फैला होता था। क्यों? वहां की जो ड्रेनेज सिस्टम था, सीवरेज सिस्टम था, दैट रिमेन्ड ऑलवेज चॉक्ड बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिक, polythene carry bags and all that thrown by us, and they are gone to the drainage system, they are gone to the drainage system. और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, हम देखते हैं हमारे स्ट्रॉ एनिमल्स हैं, जो आवारा पशु जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रे एनिमल्स, वो क्या करते हैं, अपने खाने की तलाश में घूमते हैं। आप वो छिलके विलके उसमें पैक करके डाल देते हो, या पानी में बहा देते हो, पानी में फेंक देते हो प्लास्टिक के साथ अपने। वो कभी घर में हवन होता है, सब कुछ पंडित जी क्या बोलते हैं, पानी में जल प्रवाह कर दो। और आप सब प्लास्टिक की पन्नी भी किस में डाल देते हो, नहर के। इट पोल्यूट्स योर एनवायरमेंट, इट पोल्यूट्स योर वाटर, इट पोल्यूट्स योर अर्थ। और नॉन बायोडिग्रेडेबल अब क्या बच्चों, स्ट्रे एनिमल्स, जो आवारा पशु हैं, खाने की तलाश में घूम रहे हैं, इधर उधर अपना कर रहे हैं, वो उस क्या करेंगे, उसको ग्रीन फोडर समझ के क्या करेंगे, खा लेंगे। आजकल क्या है बच्चों, सो मैनी आवर काउज एंड अदर स्ट्रे एनिमल, दे डाई ऑफ दिस, मर जाते हैं बेचारे, क्योंकि उनके पेट के अंदर प्लास्टिक है, इट चॉक्स देयर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दे डाई। सो प्लास्टिक इज गोइंग टू pollute the environment, ये पक्की बात है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और सबसे बड़ी बात क्या, इसका जो डिस्पोजल है प्लास्टिक का, दैट इज ए मेजर प्रॉब्लम, दैट इज ए मेजर प्रॉब्लम। रीजन बीइंग इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इवन इफ वी burn it, it produces harmful gases, it pollutes the environment, it pollutes the air. सो प्लास्टिक जो है एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है। तो अब बात आती है, प्लास्टिक अगर हमारे लिए हमारे अंदर घुस चुका है, और वाक्य बात सही है, वी कैन नॉट डन अवे विद प्लास्टिक, विदाउट प्लास्टिक। इन्हें कहने का प्लास्टिक के बिना जिंदगी आज की तारीख में ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, प्लास्टिक के बिना गुजारा नहीं है। तो क्या बच्चों, how we can help in reducing the, or help our environment to improve? We have to follow the 4R principle. How to save our environment? 4R principle. आपकी बुक में 3 R's दिए होंगे, 3R principle. I always say 4R. 4R मतलब क्या है? Refuse. But that is not possible. जहां तक पॉसिबल हो सके रिफ्यूज, इफ यू कैन नॉट रिफ्यूज, रिड्यूस, कम करिए। आप जाते हो बच्चों मार्केट के अंदर, रिड्यूस मतलब आप उसे ब्रेड लेते हो,
आप पापा के साथ हो, आप कार में हो, वो पन्नी नहीं भाई, पन्नी रहने दो। कोई भी चीज अगर आप ला सकते हो घर के अंदर विदाउट दैट कैरी बैग, रिड्यूस, रीयूज, आ गई घर में वो आपकी कैरी बैग, रख लीजिए, फेंकिए नहीं। आपने कभी बाहर जाते हो चप्पल डाल के लेके जानी है, कुछ और ऐसा सामान डाल के लेके जाना है, यूज दैट। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और प्लास्टिक रिसाइकिल। कहने का मतलब क्या, प्लास्टिक वेयर, आपका प्लास्टिक मग, प्लास्टिक बकेट, कोई भी चीज, क्यों, क्या जो थर्मोप्लास्टिक है, इट कैन बी सॉफ्टेड रिपीटेडली एंड कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन, दैट इज रिसाइकिल। तो ऐसा करने से व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग टू हेल्प आवर एनवायरमेंट, वी आर गोइंग टू इंप्रूव आवर एनवायरमेंट, सो वी कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट। रिफ्यूज कीजिए, रिड्यूस की, रिड्यूस मतलब क्या है, आपने भैया आजकल क्या है, छोटे छोटे बच्चों को हम लेके क्या देते हैं, प्लास्टिक के लंच बॉक्स, अरे भाई प्लास्टिक की जगह स्टील का भी मिलता है, गो फॉर दैट, गो फॉर दैट। तो कहने का मतलब क्या है, वी कैन हेल्प इन सेविंग द एनवायरमेंट बाय 4R principle, that is refuse, reduce, reuse and recycle. And with this we come to the end of our this topic. Question and all I will give you as usual in writing. Okay, bye.